Hello guys, so we are here to present one more set based on CAT 2022 slot 2. As you know, we have started a series in which we are going to discuss all the CAT previous year sets from 2017 से लेके 2022. So in this series, we are going to discuss this set, which is name of this set is Salesman, and 2022 slot 2. As you know, this year 2022 में LRDE set was pretty tough. बट ये सेट डुएबल था। होना चाहिए था। अगर आपको थोड़ा सा रेशियो पे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना आता है देन डेफिनेटली यू कैन डू दिस सेट डुएबल सेट। इफ यू आर नॉट इन द टेलीग्राम ग्रुप देन यू कैन ज्वाइन इट आवर ग्रुप वेयर वी डिस्कस क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज। तो लेट्स बिगिन। As I always suggest, first pause this video, try to do the set by your own, do look at the question and then see the solution. क्वेश्चन देखो, ट्राई करो खुद से, आंसर मैच करो, और अगर नहीं होता 10-15 मिनट बाद देन ओनली चेक द सॉल्यूशन। तो आई एम श्योर आपने पॉज कर दिया होगा वीडियो, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ वी बिगिन द सॉल्यूशन। लेट्स सी द सेट। आई हैव ऑलरेडी टेकन द इंपॉर्टेंट डेटा। एक बार पढ़ लेते हैं सेट में क्या दिया हुआ है। सो आई हैव टेकन ओनली दिस डेटा फ्रॉम हियर बिकॉज दिस इज द रिलेवेंट डेटा। ये एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। A few salesmen are employed to sell a product called Trickek among household in various housing complexes. On each day, a salesman is assigned to visit one housing complex. Once a salesman enter a housing complex, he can meet any number of households in the time available. However, if a household makes a complaint against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. एक ही से मिलेगा, किसी ने कंप्लेंट कर दी उसके बाद वो नहीं मिल पाएगा। अ हाउस होल्ड मे बाय एनी नंबर ऑफ ट्रिकेक आइटम और मे नॉट बाय एनी आइटम। तो कितना आइटम खरीदेंगे ये हमें नहीं पता है। जो भी डेटा दिया होगा उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। द सेल्समैन नीड्स टू रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ ट्रिकेक आइटम सोल्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे मीट इन ईच डे। तो ये डेटा हमें बस दिया हुआ है, कोई ऐसा फिल करने वाला डेटा नहीं है। यहाँ से आपको डेटा फिल करना है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है सेट को यूज करना। यहां से शुरू कर। The success rate of a salesman for a day is defined as the ratio of the number of items sold to the number of household they met on each day. Some details about the performance of three salesmen, Tohori, Hokli, and Lahore, on two particular days are given below. So basically, now what we have to do, we have to fill the data for 2 days, day number 1, day number 2, for each three of the person, number of household they met, and number of item they sold and the success rate. So once we will divide number of items sold by number of household, then we will get the success rate. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। करना क्या है, now read the further data. Over the 2 days, all three of men met the same total number of household. Total number of household should be same for each of them. So this plus this plus this, and this plus this should be same. Total should be same. Over the 2 days, all three of them met the same total number of household, and each of them sold a total of 100 items. On both days, Lahore meet the same number of household on both the days. So can I say if total they have to meet 100 people and Lahore has met the same number of people both the days, so can I say number of household will be same 50-50? पहली information से we can fill it. Number of household both the days, same number of household and sold the same number of items. नंबर ऑफ आइटम सोल्ड तो नॉट नंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम जिन्होंने सोल्ड किए हैं वो है 100, और दोनों दिन सेम नंबर ऑफ आर्टिकल उसने सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे आप 50-50 फिल कर सकते हो लाहौर के केस में। एंड सोल्ड द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड, और यहाँ पे वो मिला भी सेम है। तो आप बोल सकते हो कि अगर वो यहाँ पे वाई लोगों से मिला था तो यहाँ पर भी वाई लोगों से मिला है। और टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड अगर ये 2y से मिला है तो ये भी 2y से मिला होगा और ये भी 2y से मिला होगा, बिकॉज नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैज टू बी सेम। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल अगर इसने 100 सोल्ड आउट किए हैं तो इसने भी 100 सोल्ड आउट किए हैं, इसने भी 100 सोल्ड आउट किए हैं, मिला के दोनों दिन में। ये डेटा है आपके पास। होकली कुड नॉट सेल एनी आइटम ऑन द सेकेंड डे। तो होकली ने नंबर ऑफ आइटम जो सोल्ड है 0 है, बिकॉज द फर्स्ट हाउस होल्ड ही मेट ऑन दैट डे कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे ही कोई कंप्लेंट करेगा उसके बाद वो बाकी किसी से नहीं मिल सकता। तो कहना है इससे होकली सेकेंड डे में सिर्फ एक ही हाउस होल्ड से मिला है, और टोटल मिला के दोनों दिन में वो 2y हाउस होल्ड से मिला है। तो कहना है द फर्स्ट डे ही मेट 2y - 1 नंबर ऑफ हाउस होल्ड,
और टोटल आर्टिकल जो उसने सोल्ड आउट किए वो 100 किए हैं, तो पहले दिन ही उसने 100 आर्टिकल सोल्ड आउट कर दिए होंगे, क्योंकि सेकंड डे तो जीरो है। सक्सेस रेट यहाँ पर भी आपको मिल चुका है, सक्सेस रेट इज जीरो, बिकॉज दिस डिवाइड बाय दिस करोगे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 50 अपॉन वाई सक्सेस रेट है, यहाँ पर भी 50 अपॉन वाई, यहाँ पे 100 अपॉन 2 माइनस वाई। आपको सक्सेस रेट का मतलब समझ में आ गया होगा। तोहरी मेट 30 मोर हाउस होल्ड ऑन द सेकेंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे। तो आप बोल सकते हो कि अगर लेट्स से 2 वाई डे पे वो दोनों मिल रहे हैं, तो अगर दोनों में सेम ले लूँ वाई वाई, लेकिन वो सेकेंड डे पे 30 लोगों से ज्यादा मिला है, तो बेसिकली जो डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में 30 होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच पाते हो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पहले दिन y माइनस 15 से मिला होगा, तो अगले दिन y प्लस 15 से मिला होगा, टू मेक इट 2y। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तोहरी मेड 30 मोर हाउस होल्ड ऑन द सेकेंड डे। तो अगर वो फर्स्ट डे ए लोगों से मिला है, तो सेकेंड डे ए प्लस 30 से मिला होगा, और मिला के वो 2y हाउस होल्ड से मिला है। तो आप बोल सकते हो 2a प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 2y। और जो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास, दैट इज 2a इज इक्वल टू 2y माइनस 30। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास y माइनस 15। यानी कि पहले दिन वो मिला होगा y माइनस 15, और सेकेंड डे मिला होगा y माइनस 15 प्लस 30 विच इज y प्लस 15। तो ये आप ओरली भी सोच सकते थे, नहीं सोच पा रहे हो ऐसे लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड जिससे वो मिला है वो है y प्लस 15, क्योंकि टोटल मिला के 2y ही होंगे यहाँ पर भी। Tohri success rate was twice that of Lahore's on the first day, and it was 75% on Lahore on the second day. Now, one thing which you do not know, which is number of items sold by Tohri on each day. टोटल यू नो 100 है, बट आपको ये नहीं पता कि पहले दिन उसने कितने सोल्ड आउट किए और सेकंड डे कितने सोल्ड आउट किए। तो आप मान सकते हो कि पहले दिन अगर उसने n सोल्ड आउट किए हैं, तो अगले दिन उसने 100 माइनस n सोल्ड आउट किए होंगे। पूरा क्वेश्चन यहीं पे आके आपका रुक जाता है। अब आपको निकालना है सक्सेस रेट। अगर आप देखो तो तोहरी का जो सक्सेस रेट है वो लाहौरी के पहले दिन का डबल है। तो लाहौरी का सक्सेस रेट मैं बोल सकता हूँ 50 अपॉन वाई है। सक्सेस रेट है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे मेट, ऊपर दे रखा है उसने। इसका जो सक्सेस रेट है वो हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड डिवाइडेड बाय वाई माइनस 15। तो आप क्वेश्चन अगर समझ पाओ तो नंबर ऑफ वेरिएबल दो हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन जो बनेंगी वो दो बनेंगी, क्योंकि यहां से आपको मिलेगा सक्सेस रेट दैट इज 100 माइनस एन अपॉन वाई प्लस 15। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। आपको अगर दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है यू कैन डू इट। यहाँ पे सक्सेस रेट इसका तो सेम है, लेकिन इसका क्योंकि सक्सेस रेट डिफरेंट है, ये वाला जो सक्सेस रेट है तोहरी का वो इसका डबल है, और ये वाला जो सक्सेस रेट है वो इसका 75% है। दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना आता है आपका क्वेश्चन खत्म है। तो मैं यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज, जिसपे हम ये डेटा यूज करेंगे। n माइनस एन अपॉन वाई माइनस 15 डबल है 50 अपॉन वाई का। बाकी हम सब कुछ ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो दो इक्वेशन है बेसिकली, तो घबराना नहीं है। अगर आप ये कर पा रहे हो आपका क्वेश्चन इतना सा ही है बस। तो डबल है 50 अपॉन वाई का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट इज एन वाई, पहली इक्वेशन जो मेरे को मिली है वो है एन वाई दैट इज इक्वल टू 100 वाई माइनस 100 into 15 1500। That is the first equation I got. And the success rate of the second day of Tohri, तोहरी का जो सक्सेस रेट है वो है 100 माइनस एन अपॉन वाई प्लस 15, जो कि इसका 75% है। तो बस 100 माइनस एन अपॉन वाई प्लस 15। अब कुछ लोग यहीं पे जाकर रुक जाएंगे, यार ये तो नहीं होगा हमसे सोल्व। क्यों नहीं होगा भैया? 75% इज 3/4 डिवाइडेड बाय 50 अपॉन वाई, ये तो सेम ही है दोनों जगह। तो यहां से भी आपको एक इक्वेशन एन वाई के टर्म में मिल जाएगी, अगर आप देख पा रहे हो। तो 100 वाई माइनस एन वाई दैट इज इक्वल टू 150 वाई माइनस 150 into 15 दैट इज 2250। क्या यही दो इक्वेशन और दो वेरिएबल नहीं है गाइस? इतना तो करोगे यार, 5 क्वेश्चन का सेट है। इतना भी नहीं करोगे, इससे ज्यादा 2-3 मिनट 4 मिनट लगा के आप यहां तक पहुंच गए। सब कुछ तो दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में, आपको सिर्फ यही दो इक्वेशन तो सॉल्व करनी थी। तो क्या आप एन वाई की जगह ये डेटा नहीं डाल सकते थे? आपका एक ही वेरिएबल बचता। अगर आप एन वाई की जगह ये डेटा डाल दोगे तो आपका एक ही डेटा तो बचेगा, तो खत्म हो जाता है क्वेश्चन। एन वाई की जगह मैंने ये डेटा डाल दिया, ये प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस में डालोगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 150 वाई माइनस 2250। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा कैट में यार, ये कैंसिल आउट हो जाता। 150 वाई इज इक्वल टू 3750 आ गया। अब
इस तरह से आपको इतना आसान सॉल्यूशन तो आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एक्चुअली करना भी कुछ नहीं था। y की वैल्यू 25 आ गई। अगर y की वैल्यू 25 आ गई तो आपके पास n की वैल्यू भी आ चुकी है। आप y की वैल्यू डाल दो यहाँ से, तो n की वैल्यू भी आ जाएगी 25n, दैट इज इक्वल टू 2500 माइनस 1500, दैट इज 1000। तो n की वैल्यू आ गई 40। एंड वंस यू हैव बोथ द वैल्यूज, नाउ आप पिछला वाला टेबल फिल कर दो फटाफट से, या यहाँ पे फिल कर लो, या जो भी आंसर निकालना है आप फिल कर सकते हो बड़ी आसानी से। y की वैल्यू 25 आ गई है, n की वैल्यू 40 आ गई है। लेट्स लुक एट द पिछला टेबल। y 25 है, n 40 है। अगर y 25 है और n 40 है, तो यू हैव टू जस्ट फिल इट हियर। ये डेटा आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड विल बी 10, दैट विल बी 2y विच इज 49, लाहौर की आ जाएगी 25, n की वैल्यू आ गई 40, ये आ जाएगा आपके पास 40 अपॉन 10, y माइनस 15 जो है 10 है, तो 40 अपॉन 10 करोगे, ये आ जाएगा 4%। ये आ जाएगा 40 100 अपॉन 49। ये आप चाहे बाद में भी फिल कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ y और n की वैल्यू फिल कर दो। ये आ जाएगा आपके पास 2, तो ये 2 है, ये 4 है, नॉट इन द परसेंटेज, ऐसे ही रहने दो। ये 4 है, ये 2 है, और ये 100/49 है, विच इज स्लाइटली मोर देन 2। y प्लस 25, y प्लस 25 आ जाएगा आपके पास, y प्लस 15, y प्लस 15 आ जाएगा 40, ये 1, ये 25, 100 माइनस n की वैल्यू 40 है, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 0, ये 50, ये सब आप फिल कर सकते हो। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड मेट तोहरी, होकली एंड लाहौर ऑन द फर्स्ट डे? टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड फर्स्ट डे में, टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड इज 59 प्लस 25, दैट इज 84। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 84। मैच करो अपने आंसर। हाउ मेनी ट्रिकर आइटम्स सोल्ड बाय तोहरी ऑन द फर्स्ट डे? तोहरी ऑन द फर्स्ट डे, number of items sold by Tohri on the first day is 40. Second question का answer is 40. Now look at the third question. Third question is how many household did Lahore met on the second day? Lahore on second day. Lahore on second day, that is number of household meet is 25. Between 21 and 29. तो उसने एग्जैक्ट ना देके रेंज दे दिया, फर्क नहीं पड़ता। हाउ मेनी हाउसहोल्ड डिड तोहरी मीट ऑन द फर्स्ट डे? तो हमने अगर टेबल फिल कर दिया, कुछ भी निकाल सकते हैं। तोहरी ऑन द फर्स्ट डे इज 10, दैट इज 10 और लेस, इसका आंसर भी बी है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अमंग द थ्री द तोहरी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे। तोहरी हैज द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट फॉल्स स्टेटमेंट, ये सही है। तोहरी हैड द हाईएस्ट हायर सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे कंपेयर टू द सेकंड डे। ओके, तोहरी का सेकंड डे का अगर हम कंपेयर करें सक्सेस रेट, that is 100 minus n upon या this upon this है, which is 1.5। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1.5 है, तो बिल्कुल सही है। पहले दिन का सक्सेस रेट उसका ज़्यादा है, तो यही बोल रहा है सक्सेस रेट, ये भी फॉल्स नहीं है, ये भी ट्रू है। Among the three, Lahore had the lowest success rate on the first day. Lahore had the lowest, yes, that is also correct. तो आंसर शुड बी फोर्थ, चेक कर लेते हैं। Among the three, Tohri had the highest success rate on the second day. तो सेकंड डे का भी निकाल लेते हैं। ये है हमारा 1.5, ये हमारा 0, और ये हमारा 2। तो हाईएस्ट है हमारा लाहौर का, तोहरी का तो नहीं है, लाहौर का सक्सेस रेट हाईएस्ट है, तो इसी वजह से ये हमारा हो गया फॉल्स। तो करेक्ट आंसर आपके पांचों क्वेश्चन के आ गए। अगर आपने सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व कर ली होती आपका सेट सॉल्व हो जाता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारे सेट मुश्किल नहीं आते हैं। सही सेट पिक कर लिया आपने तो आराम से आप एक सेट अगर आपने बना लिया, ये मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज्यादा लेना चाहिए था सेट, मैक्सिमम 10 मिनट। अभी भी आपके पास 30 मिनट पड़े थे, 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगते सेट को करने में गाइस। तो अगर आपने एक और सेट बना लिया होता, यू आर अमंग द 99 परसेंटाइल ऑफ द पीपल। इवन 10 नंबर पे 99.5 समथिंग ऊपर था, 10 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो 30 मिनट बचे एक सेट और करने के लिए, जो आप आराम से कर सकते हैं। तो बस यही सीखना है, राइट काइंड ऑफ सेट एंड राइट काइंड ऑफ अप्रोच। तो एक अनाउंसमेंट, जैसे आपको पता है आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी। तो अभी अनअकैडमी पे 20 मई तक ऑफर चल रहा है। तो इफ यू वांट टू अवेल, देयर इज अ 25% ऑफ, एंड उसमें एक्सटेंशन भी मिल रहा है। 2 ऑफर है, एक प्लस का और एक आइकॉनिक का। आप जाके देख सकते हो एक बार वेबसाइट पे, और कोड ये वाला यूज करना है MYM1X। थोड़ा सा मुश्किल है, नोट कर लो, वीडियो देख लो, और ये करते रहो सीरीज गाइस, मजा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।